Yes, good morning to all. Can you hear me? Yes, आवाज आ रहा है क्या? Okay. So we are discussing with that is a stereochemistry. Now the next part of this topic is RS nomenclature. RS nomenclature. That is a Kohn and co-worker in 1966 have proposed a new and universally applicable nomenclature pattern for the dimension of absolute configuration of any chiral molecule. This is known as RS system or Kohn-Ingold Prelog, that is CIP nomenclature. It involves the following step. As already we have discussed, that is EZ nomenclature. उसी तरह जो है RS nomenclature है. So before that is seeing the rules of RS nomenclature, we have to know that is about the asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon या chiral carbon, ये हमने लास्ट पीरियड में देखे हैं. What is asymmetric carbon? ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसे हम कहेंगे asymmetric कार्बन और chiral कार्बन. ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है उसे कहेंगे हम asymmetric और chiral कार्बन. So RS nomenclature में क्या जरूरी है? That is compound must possess that is asymmetric carbon और chiral carbon. यानी जिस कंपाउंड का आप RS नोमेंक्लेचर या R या S नेम दे रहे हैं तो उसमें क्या है, उस कंपाउंड में एक असिमेट्रिक कार्बन या chiral कार्बन होना जरूरी है. तो इसके रूल्स हैं. These rules are called as sequence rules. Sequence rules, and by using these rules we that is solve some example. So first of all we understand the rules, that is what are the rules for giving that is a RS nomenclature. So in first step we used to assign the priority. Priority means preference. Preference किसको देंगे आप, यानी फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देंगे, सेकंड प्रीफरेंस किसको देंगे, थर्ड प्रीफरेंस किसको देंगे और फोर्थ प्रीफरेंस किसको देंगे. So in first step we need to assign the priority to the 4 different atoms or group attached to chiral center. आपको जिस स्ट्रक्चर का या जिस मॉलिक्यूल को IUPAC नेम देना या RS नेम देना है, सो उसका आपको प्रीफरेंस डिसाइड करना है कि पहला 1 नंबर किसको देंगे. जबकि जो कार्बन से 4 ग्रुप अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, उसमें आप पहला नंबर किसको देंगे, फर्स्ट प्रीफरेंस किसको देंगे. अंडरस्टैंड. सो अब देखिए ये प्रीफरेंस कौन से बेसिस पे देंगे. हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको पहला नंबर दो, उसको दूसरा दो, उसको तीसरा दो, ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे. तो सर्टेन रूल्स आर देयर. दीज रूल्स आर कॉल्ड एज सीक्वेंस रूल. सो प्रायोरिटीज टू द ग्रुप एटम कैन बी असाइन्ड टू द एज पर द सीक्वेंस रूल. सीक्वेंस रूल्स हैं, उसके रूल्स हैं कि पहला प्रीफरेंस किसको देंगे आप, उसके बाद सेकंड प्रीफरेंस किसको देंगे, थर्ड प्रीफरेंस किसको देंगे और फोर्थ प्रीफरेंस किसको देंगे. अंडरस्टैंड. So after assigning the priority to the atoms or groups attached to the chiral center, the molecule is oriented in such a way that the lowest priority group is decided away to the observer. That is जो सब में last number जिसका है, fourth number जिसका है, उसको it is the behind the plane of paper. It is present on behind the plane of paper. Now the arrangement of the remaining atom or group is viewed by the following decreasing order of priorities from highest priority to the lowest priority. यानी
सबसे पहले जिस ग्रुप को आपने प्रीफरेंस दिया है उसको हम क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे, उसके बाद वाले को 2 नंबर देंगे, देन थर्ड एंड फोर्थ. नाउ while weaving the atoms, in their decreasing order, if your eyes follow the clockwise direction, then the chiral center will have R configuration, whereas if your eyes follow anti-clockwise direction, chiral center will have S configuration. यानी अगर आप उस 4 ग्रुप्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अरेंज करेंगे, so it is called as R configuration. Actually R, it is derived from Greek word rictus, which means right या clockwise, और जो S जो derive किया गया है from Greek word sinister, and which means that is left. So when a molecule has 2 or more than 2 chiral center, then the same process should be followed. तो ये स्टेप्स हैं इसके. सो वी सॉल्व, दैट इज रूल्स और सीक्वेंस रूल. तो ये प्रायोरिटी, हाउ वी डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. सो वी सी, so if all the atoms directly attached to the chiral center are different, the sequence priorities is determined by their atomic number. अब देखिए जो 4 ग्रुप आपको या उस मॉलिक्यूल में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो उसमें प्रायोरिटी कैसा डिसाइड करेंगे आप, दैट इज जिस एटम का या जिस ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सब में ज्यादा है, उसे 1 नंबर देंगे, उससे कम जिसका है उसे नंबर 2 देंगे, देन 3 नंबर उससे कम जिसका है उसे थर्ड देंगे, और लास्ट वाले जिसका सब में कम एटॉमिक नंबर है जिस एटम का या ग्रुप का, उसे हम कहेंगे दैट इज 4 नंबर देंगे. दैट इज प्रायोरिटी. कौन से बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? एस. प्रायोरिटी कौन से बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? एस, कैन यू हियर मी? आ रहा है ना आवाज? प्रायोरिटी कौन से बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं आप? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर. as priority is decided on the basis of atomic number. yes, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको 1 नंबर आप जो है डिसाइड करेंगे. देन जिसका एटॉमिक नंबर उससे कम है उसे 2 नंबर देंगे. देन उससे कम जिसका है उसका नंबर 3 देंगे, और फिर जो है लास्ट वाला 4 नंबर जिसमें सब में लोवेस्ट नंबर है जिसका. ठीक है. सो इफ ऑल द एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू chiral center आर डिफरेंट, द सीक्वेंस प्रायोरिटीज इज डिटरमाइंड बाय देयर एटॉमिक नंबर. द एटम विथ हायर एटॉमिक नंबर इज गिवन हायर प्रायोरिटी. यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हायर है, उसे हायर प्रायोरिटी देंगे. इफ 2 atoms आर आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट, isotope, you know, atoms of the same element having same atomic number but different mass number. 2 ही एलिमेंट है. आइसोटोप, आइसोटोप यानी क्या आपने देखे हैं 11th 12th में. आइसोटोप मींस व्हाट? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. एटम्स ऑफ द सेम यानी एक ही एलिमेंट है, उनका प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है. फिर डिफरेंस किसमें है? डिफरेंस जो है मास नंबर में है. मास नंबर डिफरेंट है. जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप बता सकते क्या? दैट इज हाइड्रोजन H122, एक हाइड्रोजन 1:1, और ड्यूटेरियम 1:2. दैट इज हाइड्रोजन 1:1. मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है. और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की शक्ल है बट एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 1 है, और मास नंबर 2 है. तो हाइड्रोजन H और D है, फर्ज कीजिए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, तो प्रीफरेंस किसको देंगे आप? एस, हाइड्रोजन को देंगे या ड्यूटेरियम के देंगे? दोनों में से फर्स्ट कौन सा आएगा? हाइड्रोजन. सपोज 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो है ड्यूटेरियम है, यानी आइसोटोप है. तो एटम्स हैविंग हायर मास नंबर, जहां पे एटॉमिक नंबर सेम आ रहे,
तो जिस एटम का या जिस ग्रुप का मास नंबर हायर है उसे आप प्रेफरेंस देंगे. अंडरस्टैंड? सो दैट इज priorities are decided on the basis of atomic number. And if the two isotopes of the same element have, that is isotopes are there, then isotope with higher mass number has the higher priority. यानी अगर isotope है elements के, तो isotope with higher mass number have given the higher priority. For example, hydrogen और deuterium. Hydrogen एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की ही शक्ल है, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2. तो प्रेफरेंस किसको देंगे आप? दैट इज प्रेफरेंस शुड बी गिवन ड्यूटेरियम, क्योंकि उसका मास नंबर ज्यादा है. अब फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर. अब इसको प्रेफरेंस देना है. हाउ द प्रेफरेंस इज गिवन? नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर आपको 4 डिफरेंट ग्रुप्स है यहाँ पर अटैच. कौन कौन से बता सकते क्या आप? पहला स्ट्रक्चर एस, आ रहे, आवाज आ रही ना? फोर डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें? एस, चैट बॉक्स में लिखिए, आवाज आ रही ना? एस करेक्ट. सो आयोडीन, एस आंसर आया है आयोडीन. सो इसमें 4 डिफरेंट जो ग्रुप है, देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप है. तो इसमें तो आयोडीन नहीं है, देखिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, Cl क्लोरीन है, देन हाइड्रोजन है और OH है. 4 डिफरेंट ग्रुप्स. ये असिमेट्रिक कार्बन, दिस इज द सेंट्रल कार्बन, और इस सेंट्रल कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है. कौन कौन से हैं? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और OH है. अब तो पहला प्रेफरेंस किसको देंगे आप? फर्स्ट प्रेफरेंस, जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है. अब आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए. ब्रोमीन कितना है? ब्रोमीन का 35s, क्लोरीन 17, हाइड्रोजन 1 एंड OH में ऑक्सीजन का लेंगे आप, ऑक्सीजन का 8. पहला प्रेफरेंस किसको देंगे आप? द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रुप विथ हायर एटॉमिक नंबर. यानी 8 नंबर किसको देंगे? ब्रोमीन को देंगे. यस. 2 नंबर किसको देंगे आप? 2 नंबर ओके. सो 2 नंबर किसको देंगे? क्लोरीन को देंगे. बिकॉज देखिए आई हैव शोन बाय रेड, क्लोरीन को देंगे बिकॉज इसका नंबर कितना है? 17 है. 3 नंबर किसे देंगे? OH ग्रुप को देंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है. और 4 नंबर किसे देंगे? हाइड्रोजन को देंगे, बिकॉज लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, जो लोवेस्ट है. ओके. सो दैट इज in this structure 4 different groups are there: OH, H, chlorine and bromine. इसमें नंबर 1 किसको दिया आपने प्रेफरेंस या प्रायोरिटी? ब्रोमीन को दिए, बिकॉज ब्रोमीन हैज हायर एटॉमिक नंबर 35. उसके बाद क्लोरीन को दिया आपने, 2 नंबर क्लोरीन को दिए. क्लोरीन को क्यों दिए? क्योंकि 17 नंबर है उसका, 35 के बाद यहाँ पे क्लोरीन हमने 17 लिए हैं. उसके बाद 3 नंबर किसे दिए हैं हमने? OH ग्रुप को दिए हैं. OH ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन का 8 है. और सब में लास्ट नंबर हाइड्रोजन को दिए हैं, that is 4 number, it has atomic number 1. So in this way that is a priority are given. अब देखिए ये ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन OH एंड देन H. तो किस तरह से डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए एरो कहां से जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज में? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हम उसे कहेंगे R कॉन्फ़िगरेशन, ये R स्ट्रक्चर है. और अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर हो रहा है so it is called as the S configuration. So देखिए this from anti-clockwise direction, is in anti left की तरफ जा रहा है, it is in anti-clockwise direction, it is in anti-clockwise direction, so it is called as, that is S configuration. ये स्ट्रक्चर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा? it is S configuration.
It is S configuration. It is the S configuration. It is the S configuration. It is called as the S configuration. Okay. So अब देखिए इसी को अगर हमें अब दूसरा एग्जांपल लीजिए. This is the second example. That is this carbon. This is carbon and 4 different groups are attached here. One is bromine, another is chlorine, then D. What is mean by D? Capital D. S. D means हाइड्रोजन की एक शक्ल है, जैसा H यानी हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन. वैसे D कैपिटल D किसकी सिंबल है? ये कोई बता सकते? Yes, can anybody tell me? D means ड्यूटेरियम. यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ड्यूटेरियम D. और ये हाइड्रोजन की एक शक्ल है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है. और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? इट इज आल्सो 1. हाइड्रोजन का भी 1 है और ड्यूटेरियम का भी 1 है. फिर आप प्रेफरेंस किसको देंगे? पहले किसको लेंगे? यस, रूल क्या कहता है? अगर आइसोटोप है, सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जिस एलिमेंट का मास नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी देंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1. ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2. तो ड्यूटेरियम को प्रेफरेंस आप पहले देंगे क्योंकि ड्यूटेरियम का मास नंबर हाइयर है. सो फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रोमीन को, सेकंड प्रेफरेंस क्लोरीन को, थर्ड प्रेफरेंस ड्यूटेरियम डी को देंगे आप, और फोर्थ प्रेफरेंस एच को. अब देखिए ये ब्रोमीन पहले कहां से कहां जा रहा है? पहले ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर ड्यूटेरियम और फिर एच, फ्रॉम हाइयर टू लोअर. और इट इज आल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या कहेंगे इसे हम? एस कॉन्फिगरेशन. सो इट इज द एस कॉन्फिगरेशन. नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस रूल. इफ 2 or more atoms attached to the chiral center having same atomic number, the priorities are assigned by comparing the atomic number of the next atom attached to the each group. यानी फर्ज कीजिए दो सेम ग्रुप अटैच है, दैट इज CH3 और अल्काइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, दोनों भी कार्बन से अटैच है. फिर प्रायोरिटी किसको देंगे आप? तो देखिए यहाँ पर that is priority is given, that is जो ग्रुप नेक्स्ट जो ग्रुप आने वाला है उसका एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है उसको प्रायोरिटी देंगे. अब देखिए एग्जांपल देखिए, दिस इज द कार्बन एंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच. कौन कौन से हैं ग्रुप? बता सकते क्या 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इस ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या आपको? लास्ट स्ट्रक्चर. वन इज ब्रोमीन, ठीक है. दूसरा कौन सा है? CH3, देन हाइड्रोजन एंड देन CH2 CH3. These are the 4 different groups. अब पहला प्रेफरेंस किसको देंगे आप बताइए इसमें? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? नंबर 1 ब्रोमीन को देंगे. यस, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35. अब देखिए नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? CH3 और C2H5 दोनों में भी कार्बन है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इस कार्बन का भी 6 है, लेकिन इस कार्बन से और एक कार्बन अटैच है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. और इस कार्बन से अटैच क्या है? CH3 से H है और उसका एटॉमिक नंबर 1 है. तो सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे आप? C2H5 ग्रुप को देंगे. ओके, दैट इज सेकंड प्रेफरेंस इज गिवन टू C2H5 ग्रुप. थर्ड प्रेफरेंस मिथाइल ग्रुप को, इट हैज एटॉमिक नंबर 6. एंड फोर्थ प्रेफरेंस दैट इज हाइड्रोजन को. सो इन दिस स्ट्रक्चर that is 4 different groups are bromine, that has given preference 1, number 1. नंबर 2 किसको दिया आपने? इथाइल ग्रुप को, CH2 CH3 ग्रुप को. नंबर 3 CH3 ग्रुप को, that is मिथाइल ग्रुप को. और नंबर 4 that is the हाइड्रोजन एटम को. नाउ देखिए इनका जो रोटेशन है कहां से हो रहा है? पहले ब्रोमीन 1 नंबर पे जाइए, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे और फिर 4 नंबर पे. सो पहले ब्रोमीन से इथाइल ग्रुप की तरफ और इथाइल से फिर मिथाइल. सो इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये जो है क्लॉकवाइज, देखिए मैं ये पॉइंटर से बता रहा हूं, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और क्लॉकवाइज में जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज आर. इट इज कॉल्ड एज द आर कॉन्फिगरेशन.
Now next, more example we see, that is a third sequence rule, that is if the atoms or group attached to the center atom are further linked with some other atom along double and triple bond, then the double or triple bonded atom are considered to be duplicate or triplicate. As per sequence rule, the triple bond get priority over the double bond. Similarly, double bond get priority to the single bond. एंड देखिए एग्जांपल लेंगे तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ग्रुप में, तो प्रेफरेंस किस तरह से देंगे आप? तो दिस इज द स्ट्रक्चर दिस इज द CHO, CH double bond O, here is COH H and CH2OH. तो पहले प्रेफरेंस आप जहां पे सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड को देंगे, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड. अब देखिए दिस इज द सेंट्रल कार्बन, दिस इज द सेंट्रल कार्बन. मैं जो रेड पॉइंटर से बता रहा है इट इज द सेंट्रल कार्बन. अब इससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं बताइए? 4 डिफरेंट ग्रुप समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों के? 4 डिफरेंट ग्रुप कौन से हैं? एक हाइड्रोजन है, दूसरा OH है, तीसरा CHO है और चौथा CH2OH है. Understand? So 4 different groups are OH, H, CHO and CH2OH. अब प्रेफरेंस देना है, एक नंबर किसे देंगे आप? S. एक नंबर किस में देंगे? जिसमें सिंगल बॉन्ड है और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है. अब देखिए इस कार्बन से 4 डिफरेंट, एक तो O से अटैच है, ये कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोजन से अटैच है और फिर कार्बन से. तो ये कार्बन O से अटैच है, सो इट इज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी बिकॉज ऑक्सीजन का 8 है, कार्बन का 6 है और हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच है. सो OH ग्रुप को प्रेफरेंस 1 देंगे, नंबर 1 OH ग्रुप को देंगे. अब नंबर 2 किसे देंगे आप? दैट इज दिस कार्बन को देंगे, CHO ग्रुप को देंगे, CHO ग्रुप, क्योंकि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है वो असिमेट्रिक कार्बन से अटैच है. सो सेकेंड CHO को देंगे, थर्ड वन CH2OH और फोर्थ वन हाइड्रोजन को. अंडरस्टैंड? सो प्रेफरेंस आर गिवन, फर्स्ट प्रेफरेंस OH ग्रुप, सेकेंड प्रेफरेंस CHO ग्रुप, थर्ड प्रेफरेंस CH2OH ग्रुप एंड फोर्थ प्रेफरेंस H को. अब देखिए इनका किस तरह से आप ये करेंगे. दिस कार्बन, तो सबसे पहले क्या किया आपने? नीचे OH लिए, OH ग्रुप एक नंबर पे जो था. अब 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप, सो वी हैव गिवन CHO हियर. थर्ड नंबर पर CH2OH और दिस इज द फोर्थ नंबर पर दैट इज हाइड्रोजन एटम. अब डायरेक्शन देखिए इसकी, कहां से? 1 से 3 की तरफ जाइए आप, 1 से 3, 1 OH ग्रुप, देन 2 पर CHO ग्रुप और थर्ड पर दैट इज द CH2OH. ये तो किस तरह, कौन सी डायरेक्शन हो रही है? क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज? यस, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज बताइए, या चैट बॉक्स में लिखिए. क्लॉकवाइज अगर है तो R होगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो S होगा. S, तो ये S है या R? S, जोर से बोलिए आवाज. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. और एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्या लिखते हैं उसे? S लिखते हैं या R लिखते हैं? इट इज S. अंडरस्टैंड? सो ये S स्ट्रक्चर, जैसा EZ देखा आपने, EZ नोमेनक्लेचर, किसी को E लिखते हैं हम, किसी को Z लिखते हैं, वैसे यहाँ पे अगर जो प्रायोरिटी है हायर एटॉमिक नंबर से लोअर एटॉमिक नंबर की तरफ जा रहे हैं आप और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे हम S कहेंगे, S फॉर्म कहेंगे, S कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे. और अगर हायर एटॉमिक नंबर से लोअर एटॉमिक नंबर की तरफ जा रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज द R. तो ये रूल्स हैं और इस रूल्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. तो देखिए दिस इज द एग्जांपल. ये पहला स्ट्रक्चर देखिए. पहले क्या करना है आपको? जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, so that is ये these are the 4 ग्रुप, 1 2 3 4. और यहाँ पे जो
रोटेशन है, कैसा है, कौन से डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। और क्लॉकवाइज रहे तो हम क्या कहते हैं, उसे आर कहते हैं, आर। आर। और दिस इज देखिए 1 2 3 4, 1 से 3 की तरफ जाना है आपको, 1 से 3, 1 से पहले 1 आना चाहिए, फिर देन 2, फिर 3, प्रायोरिटी। और 1 किसको देंगे आप, ऐसा ग्रुप जिसका एटॉमिक नंबर सब में ज्यादा है वो लेंगे। यहाँ ये जनरल बताया आपको, ये एग्जांपल समझ में आने के लिए। अब यहाँ पर देखिए सेकंड स्ट्रक्चर में 1 2 3 4, अब ये डायरेक्शन कैसा है, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में है, ये इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, तो इट इज कॉल्ड एज द एस, इट इज कॉल्ड एज। अब देखिए इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेट अस अप्लाई द होल सीक्वेंस टू ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन। इस स्ट्रक्चर का नाम है ब्रोमो, ब्रोमो यानी कौन सा आइटम रहेगा, ब्रोमीन, क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरो यानी फ्लोरीन, और मीथेन दैट इज 1 कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे सेंटर में कार्बन है, देखिए सेंटर में कार्बन है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, और ये क्लोरीन है। तो ये 4 ग्रुप है। तो नंबर 1 किसको देंगे आप बताइए, नंबर 1 प्रीफरेंस किसको देंगे, वो ग्रुप को देंगे या ब्रोमीन। देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सब में ज्यादा है, ब्रोमीन को देंगे, करेक्ट, क्योंकि उसका कितना है, 35 है। अब 2 नंबर किसे देंगे आप, 2 नंबर किसे देंगे, उससे कम, ब्रोमीन से कम किसका है, देखिए तीनों में क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। आपको एटॉमिक नंबर याद रहना जरूरी है उसके लिए। एस किसे देंगे आप, पहला ब्रोमीन को दिए, दूसरा किसे देंगे, क्लोरीन को देंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है। तीसरा फ्लोरीन को देंगे, और चौथा हाइड्रोजन को देंगे, उसका नंबर 1 है। अब देखिए ब्रोमीन 1 2 3 जाइए, 1 2 3 कौन सी डायरेक्शन हो रही है इसमें, क्लॉकवाइज हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। नो क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज। देखिए ऐसा होना चाहिए क्लॉकवाइज, यहाँ ऐसा जा रहा है, ब्रोमीन से क्लोरीन, फिर क्लोरीन से ऐसा, ये देखिए ऊपर के एंटी क्लॉकवाइज जो लिखा हुआ है ये देखिए कैसा है, और यहाँ पर ये भी देखिए ब्रोमीन क्लोरीन देन फ्लोरीन, ऐसा जा रहा है, देखिए ब्रोमीन क्लोरीन और ये ऐसा। तो ये डायरेक्शन कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखिए कैसी डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या कहेंगे उसे हम, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, एस एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, एस कहते हैं या आर, एस करेक्ट। एस एस। आपको कैसा ऑब्जेक्टिव में ये एग्जाम दिए जा रहे हैं, आपको एग्जांपल देंगे ये एस है या आर है, या ड्रॉ करो एस और आर ड्रॉ करो बोल के आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या शेप का क्या पूछ रहे हैं आप, बार बार मैसेज भेज रहे कि बोलिए सर बोल के, क्या एग्जाम ऑनलाइन है आपका, आप पूछ रहे कि सर एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बार बार मैसेज चैट बॉक्स में लिख रहे, तो आपका एग्जाम, इससे पहले ही बताया कि आपका एग्जाम ऑनलाइन है। ओके आपको कोई है कि प्रॉब्लम पूछिए या तो स्पीक कीजिए, यस और कुछ है क्या प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ठीक है क्या, सर कब है एग्जाम? एग्जाम में भी टाइम टेबल नहीं, अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ना, अभी पढ़ा अभी डिस्कस करें ना, पढ़ाना रह जाता, ठीक है सर। 5 मिनट हम, ओके सर। अंडरस्टैंड, मैं 5 मिनट देता उसमें, यस। अभी अगर ये पढ़ाना रह जाता ये हो जाता, क्योंकि टाइम कम रहता ना। आपका एग्जाम ऑनलाइन ही है, टाइम टेबल नहीं आया है अभी, और जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है उनका एग्जाम 8 तारीख से शुरू है, 8 फरवरी से, अंडरस्टैंड। आपका कॉलेज थोड़ा लेट शुरू हुआ था फर्स्ट ईयर का, इसलिए जो है थोड़ा लेट होगा आपका एग्जाम। व्हाट्सएप पे डालेंगे हम आपको टाइम टेबल, ठीक है, ऑनलाइन ही यस। आप तैयारी कीजिए। अब देखिए इसकी एग्जांपल्स लेना है, देखिए 10 ही मिनट बाकी है अभी। अब इसको पहला एग्जांपल देखिए, इसको आर एस कॉन्फ़िगरेशन बताइए, आर है या जेड, आर है या एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन से जो 4 ग्रुप है वो 4 ग्रुप आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कौन कौन से ग्रुप है। नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर एस, यस। कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन।
अब उसके बाद और ग्रुप आपने आइडेंटिफाई किए, अब ये आइडेंटिफाई करना है कि सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी एक नंबर किसको देंगे आप, एक नंबर किसको देंगे आप, यस एक नंबर किसे देंगे, ब्रोमीन। यस ब्रोमीन को देंगे। यस क्यों ब्रोमीन को देंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका। एटॉमिक नंबर ज्यादा है 35। 2 नंबर किसे देंगे, क्लोरीन। क्लोरीन को, यस क्योंकि क्लोरीन का 17 है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए नहीं, क्योंकि क्लोरीन का नंबर 17 है। फ्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर, 3 नंबर दिए फ्लोरीन को, फ्लोरीन को 3 दिए आपने, yes, क्लोरीन को 3 नंबर दिए हमने, उसका 9 है, और हाइड्रोजन को 4। अब देखिए डायरेक्शन कैसी हो रही है, ऐसा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज रहा तो इसका नाम क्या हो गया फिर आर। तो आर। आपको स्ट्रक्चर को आर या एस कॉन्फ़िगरेशन देना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 ग्रुप कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करें, पहचानेंगे। 4 ग्रुप में नंबर 1 किसको देंगे, प्रीफरेंस प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबर 2 किसको देंगे, 3 किसको देंगे, और 4 किसको देंगे। फिर वो क्लॉकवाइज में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में अगर जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज आर, और एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज द एस। ठीक है, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ब्रोमीन 1 नंबर पे, क्लोरीन 2 नंबर पर, 3 नंबर पे फ्लोरीन, हाइड्रोजन तो हमेशा 4 पे ही आएगा, अंडरस्टैंड। और ये सामने लिख रहे, लेकिन ये बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के पीछे है, इसलिए इसको यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो ये यहाँ पे डायरेक्शन देखिए कैसी है, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, हाउ इज द डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन क्या देंगे फिर, आर देंगे क्या एस देंगे, एस। एस, करेक्ट, सो इट इज द एस। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल देखिए अब, ये कार्बन, सेंट्रल कार्बन है, ये कार्बन से 4 ग्रुप कौन कौन से है, एक COOH है, देखिए ये CO2H है यानी COOH है, ये NH2 है, ये H है, और Me यानी शॉर्ट में लिखा गया मिथिल ग्रुप, रिमेंबर Me यानी मिथिल ग्रुप। तो नंबर 1 किसको देंगे आप इसमें, एक नंबर किसे देंगे, कौन से ग्रुप को देंगे, नंबर 1 NH2 ग्रुप को देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन, अब देखिए ये कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको कार्बन का 6 है, और ये कार्बन का भी 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, और नाइट्रोजन का 1 है, सो NH2 ग्रुप को 1 देंगे। उसके बाद ये इस सेंट्रल कार्बन से यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन, तो नंबर 2 किसको देंगे आप। लेकिन कार्बन के बाद कौन सा आइटम है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कार्बन के मिथिल ग्रुप में कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, इसलिए नंबर 2 COOH ग्रुप को देंगे, अंडरस्टैंड। नंबर 3 मिथिल ग्रुप को, और नंबर 4 जो है हाइड्रोजन को, अंडरस्टैंड। पहले डिसाइड करना है कि किस तरह से नंबर दे रहे आप, किस तरह से नंबर देंगे, अंडरस्टैंड। नंबर 1 NH2 ग्रुप को देंगे, नंबर 2 COOH ग्रुप को देंगे, नंबर 3 मिथिल ग्रुप को, और नंबर 4 हाइड्रोजन को, अंडरस्टैंड। अब ये क्लॉकवाइज में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका नाम क्या होगा फिर, एस होगा या आर होगा, एस। करेक्ट। क्लॉकवाइज है तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, इट इज एस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखिए, अब ये 4 डिफरेंट ग्रुप कार्बन, सेंट्रल कार्बन लेंगे, एक मिथिल है, एक फ्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, और एक CH2CH2Cl। फ्लोरीन का नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 9 है, इसलिए इसको नंबर 1 दिए। ठीक है, नंबर 2 किसको दिए, CH2। अब देखिए यहाँ पे भी कार्बन से अटैच है और यहाँ पर भी कार्बन से अटैच है, दोनों का नंबर सेम है, लेकिन इस कार्बन से आगे फिर कार्बन और क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए नंबर 2 इसको दिए हमने। आ रहा है कि समझ में, CH2CH2Cl को नंबर 2 दिए हैं, और इसे नंबर 3 और इसे नंबर 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से डायरेक्शन हो रही है, फ्लोरीन लिया आपने, के बाद नंबर 2 लिए CH2CH2Cl, और नंबर 3 CH3। तो ये डायरेक्शन कैसी हो रही है, देखिए इस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो क्या करेंगे इसे हम, आर। आर, एस आर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए पहले तो ये 5 एग्जांपल आते थे आपको ऐसे, और 10 मार्क के लिए खाली आर लिखे क्या 2 मार्क मिल जाते, ये आर या एस जो भी पूछा गया है एग्जाम में, ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं आपको, राइट द RS कॉन्फ़िगरेशन।
उसके नीचे लिखना है खाली आर कॉन्फ़िगरेशन या एस कॉन्फ़िगरेशन। आपको डिसाइड करना है कि कैसी डायरेक्शन है इसकी, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल देखिए, बताइए आप 4 ग्रुप कौन से हैं? थोड़ा फास्ट देखिए, 3 ही मिनट रह गए। दिस का आप लोग लेट ज्वाइन हो गए। दिस कार्बन COH OH CS3NH, तो नंबर 1 किसे देंगे आप? OH को देंगे क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। उसके बाद किसे देंगे? COOH को, फिर CS3 को और फिर H को। अब देखिए OH को नंबर 1, COOH को नंबर 2, CS3 को नंबर 3 और H को नंबर 4। अब ये डायरेक्शन कैसी हो रही है देखिए, OH फिर COH फिर CS3 फिर H, तो कैसा जा रहा है ये? क्लॉकवाइज जा रहा है क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो इट इज कॉल्ड एज R। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ग्रुप कौन से? OH H CS3 CS2 CS3, ये हो गया एग्जांपल, फिर भी लेंगे। ठीक है, पहला नंबर 1 OH को, और CS3 CH, एक CS3 है, इथाइल और मिथाइल है, तो पहले दोनों में से पहला कौन सा लेंगे? इथाइल लेंगे क्या मिथाइल लेंगे? इथाइल लेंगे क्योंकि उसको 2 कार्बन है और मिथाइल में 1 ही कार्बन है, इसलिए दैट इज कार्बन। नेक्स्ट जो एटम अटैच है वो कार्बन है इथाइल ग्रुप में, और नेक्स्ट एटम मिथाइल ग्रुप में जो अटैच है वो हाइड्रोजन है। तो नंबर 1 क्या करेंगे? OH को देंगे, नंबर 2 CH2 CS3 को देंगे, नंबर 3 CS3 को देंगे और नंबर 4 H को। अब देखिए कैसे जा रहा है, यहां से देखिए पॉइंटर देखिए, OH फिर CH2 CS3 फिर CS3, ऐसे जा रहा है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन बताइए। जो मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं देखिए, OH पे पहला फिर CS3, एंटी क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज कॉल्ड एज द एस। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखिए, लास्ट 2 मिनट रह गए खाली। ये कार्बन, और इस कार्बन से जो 4 ग्रुप है NH2 COOH CS3 और H। नंबर 1 किसको दिया आपने? NH2 को, नंबर 2 किसको दिए? COOH, नंबर 3 CS3 को और नंबर 4 H को। देखिए पहले NH2 फिर COH और फिर CS3, तो इस तरह से जा रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है? S। अब इसी को क्लॉकवाइज बनाएंगे हम, देखिए कैसा। तो पहला किसको दिया आपने? NH2 को, दूसरा COH को, तीसरा जो है CS3 को। तो ये इस तरह से डायरेक्शन, NH2 COH और ये CS3, और ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है? इट इज द क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है तो क्या कहेंगे इसे? R। Okay, so this is the RS nomenclature. So in this way, that is this is regarding the RS nomenclature. Maximum part हमारा कंप्लीट हो गया है, 1 या 2 पीरियड में हमारा पूरा सिलेबस जो है इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, जल्दी पूछिए, 1 ही मिनट, आधा मिनट बाकी है क्या? ऑनलाइन एग्जाम होंगे, आप पूछ रहे थे ऑनलाइन एग्जाम होंगे, टाइम टेबल भी नहीं आया है आपका, फर्स्ट ईयर का नहीं आया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का आया है। ठीक है, और संडे को पीरियड रखेंगे हम। संडे को कितने बजे रखना है? 10 साढ़े 10 बजे रखे तो चलेगा क्या? संडे को पीरियड, एक्स्ट्रा पीरियड। यस। संडे को रखेंगे, फिर मंडे को भी लेंगे, 2-3 पीरियड लेंगे। मैं MCQ का PDF भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे, उसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम MCQ है। तो MCQ का PDF मैं आपको भेजूंगा, मैं बना रहा हूँ अभी, एक 4-5 रोज में भेजूंगा आपको। ये सिलेबस कंप्लीट होगा हमारा 1-2 पीरियड, फिर मैं आपको भेजूंगा। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर।